Hello, dear students. Today we are going to discuss a new chapter of history. The name is Traders, Kings, and Pilgrims. As the name of this chapter indicates, in this chapter we will discuss about the traders, about the kings, and the pilgrims. Dear student, as we discussed in the previous chapter about the Mauryan dynasty, you know very well that the Mauryan dynasty, it was consist of three important rulers. These were Chandragupta Maurya, Bindusara, and the Asoka. Dear student, as you are aware, the Mauryan Empire, it spread almost the whole Indian subcontinent during the reign of the Asoka. But after the war of Kalinga, Asoka left the left to fight the wars, and he spread the message of the non-violence that was known Asoka's Dhamma. Dear student, Asoka was died in 232 BC. After the Asoka's success, after the death of the Asoka, the successor of Asoka's, they were weakened and they could not fully control the Mauryan Empire. So, uh, others powerful people, they took the advantage of it, and Pushpamitra Sunga, who was the military commander of the Mauryan Empire, Briratha was assassinated by his military commander Pushpamitra Sunga, and he got control on the Mauryan Empire. With the passage of this time, different rulers came in the Indian subcontinent, or we can say that different kingdoms emerged from the Mauryan Empire. These different kingdoms were Indo-Greeks, Sakas, Guptas, Kushanas, Sungas, Kannavs, Satavahanas, Vakatakas. These were the different rulers who ruled in the north and northwestern India. Except this, in the South India, there were three major rulers. These are our Cheras, Cholas, and Pandyas. In central India, there were two rulers. These were the Pallavas and the Chalukyas. So, in this chapter, we are going to discuss that how these different kingdom emerged, how we came to know about these, and how the trader helps to explore the new routes of the world. And we will also discuss about the pilgrims as well as the spread of the Buddhism. So, dear student, in this chapter, we are going to discuss about the traders, kings, and the pilgrims. In this chapter, we will discuss about the trading. We will also discuss about the new kingdom along the coastal areas. We will also discuss about the pilgrims. Except this, we will also discuss about the how the Buddhism spread in India after the Asoka, as well as in the different parts of the world. And we will also discuss about the beginning of the Bhakti movement in India. First of all, we are going to discuss about the traders. How to find out about the trade and traders. हम जो हैं traders के बारे में जो है कैसे हमको जो है पता लगता है. The evidence of trade are found in old Tamil literature of Sangam poets around 2300 years ago. हमको जो है ट्रेड के बारे में जो एविडेंस मिले हैं, जो प्रमाण मिले हैं, वो तमिल लिटरेचर से मिले हैं. तमिल लिटरेचर को संगम लिटरेचर के नाम से जाना जाता है. And Sangam literature was composed by the poets. These were the scholars. They held the meeting. They discussed the different topics in that, and after that they wrote the literature that is known as the Sangam in the Tamil Nadu region. It was the matter approximately 2300 years ago. So, dear student, we are also aware that in the previous chapter we discuss about the Nadran black police wear. Means these are the
vessels. These are the vessels that we came to know that were used by the trader, and these were very famous during the Harappan civilization and later on. So various goods like fine pottery are found from several archaeological sites throughout the Indian subcontinent. तो ट्रेडर के बारे में हमको जो है नद्रन नद्रन ब्लैक पॉलिश वेयर से भी पता लगता है, यानी कि पॉलिश किए हुए काले बर्तनों से भी पता लगता है। इसके अतिरिक्त हमको जो है फाइन पोट्री मिली है, अच्छे अच्छे जो है बर्तन मिले हैं, मिट्टी के बर्तन मिले हैं, जो हमको कई आर्कियोलॉजिकल साइट से मिले हैं और जो पूरे इंडियन सब कॉन्टिनेंट में आपके पाए गए, जो प्रमाण दिखाते हैं ट्रेडर्स का कि ट्रेडर जो हैं इन वस्तुओं को जो है एक स्थान से दूसरे स्थान पर लेकर जाते थे और इनको बेचते थे। A number of goods were carried by traders from the places where they are made to sell them at other places. तो बहुत सी ऐसी वस्तुएं थी जो ट्रेडर के द्वारा जो है दूसरे स्थानों पर लेकर जाई जाती थी। कहां से? फ्रॉम द प्लेसेस वेयर दे आर मेड, जहां पर वो बनाई जाती थी उससे जो है वो वस्तुएं लेकर जो है दूसरे स्थानों पर भेजते थे, टू सेल देम एट अदर प्लेसेस, और दूसरे स्थानों पर उनको बेचते थे। इसके अतिरिक्त बर्तनों के अतिरिक्त और क्या क्या वस्तुएं हमको मिली हैं, क्या क्या एविडेंसेस हमको मिले हैं। साउथ इंडिया वॉज फेमस फॉर गोल्ड, स्पाइसेस, स्पेशली पेपर एंड प्रीशियस स्टोन। जो साउथ इंडिया है वो किसके लिए फेमस था बेटा? आपका गोल्ड के लिए फेमस था, स्पाइसेस मसालों के लिए फेमस था, और उन मसालों में सबसे ज्यादा जो फेमस थी वो थी बेटा आपकी पेपर यानी कि काली मिर्च, एंड प्रीशियस स्टोन, और प्रीशियस स्टोन भी वहां के आपके साउथ इंडिया के फेमस थे। आज भी साउथ इंडिया जो है इट इज ऑल्सो फेमस फॉर द गोल्ड एंड द स्पाइसेस। कर्नाटका में कोलार माइन है आपकी, जहां से आपका गोल्ड जो है आज भी निकाला जाता है। और इसके अतिरिक्त जो आपका साउथ इंडिया है, जैसे कि केरला का रीजन, आपका नीलगिरी हिल का रीजन है, वहां पे अलग अलग स्पाइसेस जो है वो ग्रो आपके किए जाते हैं। पेपर जो काली मिर्च थी वॉज पर्टिकुलरली वैल्यूड इन द रोमन एम्पायर, वो रोमन एम्पायर में यानी कि रोम में बहुत ज्यादा फेमस थी, बहुत ज्यादा उसका मूल्य वहां पे आंका जाता था। सो मच सो, इतनी ज्यादा फेमस थी दैट इट वॉज नोन एज ब्लैक गोल्ड, कि उसको वहां पे जो है ब्लैक गोल्ड का नाम दिया जाता है। सो ट्रेडर्स कैरीड मैनी ऑफ दीज गुड्स फ्रॉम इंडिया टू रोम इन शिप्स। इसलिए ट्रेडर क्या करते थे, वो क्या करते थे, बहुत सी वस्तुओं को जो है इंडिया से जो है रोम में लेकर जाते थे जहाजों के द्वारा, अक्रॉस दी सी, समुद्र को पार करते थे, एंड बाई लैंड या जमीनी रास्तों से जाते थे, लैंड रूट से जाते थे, इन कारवेंस, ग्रुप में। कारवेंस क्या होता है? ग्रुप ऑफ ट्रेडर, यानी कि वो ग्रुप में जो है एक स्थान से दूसरे स्थान पर वस्तुओं को लेकर जाते थे। ट्रेडर्स एक्सप्लोर्ड सेवरल सी रूट्स टू रीच इंडिया। जो ट्रेडर थे उन्होंने बहुत से जो है सी रूट्स को जो है एक्सप्लोर किया, उनका पता लगाया, जो इंडिया में जो है पहुंचते थे। सम ऑफ दीज फॉलोड दी कोस्ट, इनमें से ज्यादातर जो आपके हैं वो कोस्टल एरिया के यानी कि तटीय रेखा के द्वारा जो है आपके जो है पता लगाए, यानी कि कौन से तटों पर इंडिया से जो है पहुंचा जा सकता है। देयर वर अदर्स अक्रॉस द अरेबियन सी एंड बे ऑफ बंगाल। इसके अतिरिक्त बहुत से ऐसे ट्रेडर्स थे जो हैं अरेबियन सी और बे ऑफ बंगाल को क्रॉस कर कर जो है इंडिया में आते थे। वेयर सैलर टुक एडवांटेज ऑफ मॉनसून विंड, जहां पे वो मॉनसून विंड का फायदा उठाते थे, यानी कि अरेबियन सी जो है वो अरब जो कंट्रीज है उनके लिए फेमस है, और उन्हीं के नाम पर इसको अरेबियन सी माना जाता है, यानी कि अरब के जितने भी कंट्रीज हैं वो आपके अरेबियन सी से होते हुए इंडिया में आते थे। अब इंडिया में जो है आपकी सीजनल विंड मॉनसून चलती है, तो वो मॉनसून विंड का फायदा उठाते थे टू क्रॉस दी सी मोर क्विकली, ताकि वो जो है समुद्र को जो है जल्दी ही क्रॉस कर सके, यानी कि जिस दिशा में आपकी मॉनसून चलती थी वो दिशा जो है आपकी इंडिया की होती थी, और उन्हीं की लहरों के साथ साथ उनका जहाज जो है, उनका शिप जो है वो आपका इंडिया में आता था। सो इफ दे वांटेड टू रीच द वेस्टर्न कोस्ट ऑफ द इंडियन सब कॉन्टिनेंट, यानी कि अरब देश के जो व्यापारी थे, अगर वो इंडिया में आना चाहते थे वेस्टर्न कोस्ट से यानी कि अरेबियन सी से, तो फ्रॉम ईस्ट अफ्रीका और अरेबिया या अफ्रीका से या अरेबिया से, दे चोज टू सेल देयर सेल विद दी साउथ वेस्ट मॉनसून विद दी स्टर्डी शिप, यानी कि वो अपने जहाजों को, ये स्टर्डी शिप जो आप देख रहे हैं, इन जहाजों को जो है
किस चीज का सहारा देते थे, साउथ वेस्ट मॉनसून का सहारा देते थे, यानी कि साउथ वेस्ट मॉनसून के थ्रू जो है आपका जो है जो जहाज है वो वेस्टर्न कोस्टल एरिया पे आपके पहुंच जाते थे। तो इस प्रकार से जो है इंडिया में जो है ट्रेडर्स आपके आने शुरू हुए। सो दीज आर द एविडेंसेस that shows that we came to know about the trader, and we came to know that which types of the different goods were exchanged by the trader, and we will also know that how the different trader explore the different sea route as well as the land routes. After that, new kingdoms along the coastal areas. Dear student, as I told you that when the Mauryan Empire was decentralized, there were different kingdoms that emerged from the Mauryan Empire. In the south, there were three main kingdoms that were emerged from the Mauryan Empire. These are our Cheras, Cholas, and the Pandyas. So in this concept, we will discuss about the different kingdoms that emerge along the coastal areas of the seas or the oceans. The southern half of the subcontinent means our South India is marked by a long coastline. हमारे साउथ इंडिया में जो है बहुत बड़ी कोस्टल लाइन है, यानी कि समुद्र तटीय रेखा है। यानी कि अगर हम कोस्ट लाइन की बात करें, द कोस्ट लाइन डिस्टेंस ऑफ द साउथ इंडिया और द इंडिया इज द 7516.6 किलोमीटर, यानी कि इतनी लंबी जो है समुद्री रेखा जो है, तटीय रेखा जो है हमारे पास है, विच हैज हिल्स, प्लेट्यूज एंड रिवर वैली। यहाँ पे जो है आपकी हिल्स पाई जाती हैं, प्लेट्यूज रीजन पाए जाते हैं और रिवर वैलीज पाई जाती हैं। अमंगस्ट द रिवर वैलीज, और अगर हम इन रिवर वैलीज की बात करें, दैट ऑफ द कावेरी इज मोस्ट फर्टाइल। तो इन रिवर वैली में जो है आपकी जो है कावेरी नदी का जो एरिया है वो बहुत ज्यादा फर्टाइल था, बहुत ज्यादा उपजाऊ था। एक्चुअली जो साउथ इंडिया है यहाँ पे 4 मेजर रिवर हैं। दीज आर अवर गोदावरी, महानदी, कृष्णा एंड कावेरी, जिसमें से कावेरी का जो रीजन है वो बहुत ज्यादा आपका फर्टाइल है। चीफ्स एंड किंग, तो जो आपके पावरफुल पर्संस होते थे या राजा होते थे, हु कंट्रोल द रिवर वैलीज एंड द कोस्ट, बिकम रिच एंड पावरफुल। वो जो है रिच बन जाते थे और पावरफुल, शक्तिशाली जो है हो जाते थे, क्योंकि ये रीजन जो था फर्टाइल रीजन था आपका। संगम पोएम्स, यानी कि तमिल लिटरेचर संगम पोएम के नाम से जिसको जानते हैं, मेंशन दी मुवेंदार। इसमें एक शब्द मिला है हमको मुवेंदार। इट मीन्स ए तमिल वर्ड मीनिंग 3 चीफ, यानी कि 3 शक्तिशाली लोग, या 3 रूलिंग फैमिलीज, यानी कि 3 रूलिंग फैमिलीज हमको जो है मुवेंदार में जो है आपको देखने को मिली है। दीज आर अवर चोलास, चेरास एंड दी पांड्यास, who became powerful in South India about 2300 years ago। जो आपकी साउथ इंडिया में जो है 2300 ईयर एगो पहले जो है बहुत ज्यादा शक्तिशाली हो गई थी। यानी कि 3 रूलिंग फैमिली जो साउथ इंडिया में ज्यादा पावरफुल थी, दीज आर चोलास, चेरास एंड दी पांड्यास। Each of the 3 chiefs had 2 centers of power, one on the inland and one on the coast। जो 3 रूलिंग चीफ थे, चेराज, चोलाज एंड दी पांड्याज, ये क्या थे, इनके पास दो दो जो है पावरफुल स्टेशन थे। एक आपका इनलैंड जमीन के ऊपर था और एक आपका कोस्ट समुद्रीय रेखा पर था, यानी कि समुद्र पे था। Thus there were 3 important cities for the 3 chiefs। इस प्रकार से तीनों चीफ के जो हैं तीन जो है इंपोर्टेंट सिटीज हुए। ऑफ दीज 6 सिटीज, और अगर सबके पास दो दो थे तो टोटल 6 हो गए आपके। 2 वर वेरी पोर्ट, इनमें से 2 जो है बहुत ज्यादा फेमस हुए। वन इज पुहर और कावेरी पट्टिनम, द पोर्ट ऑफ द चोलाज, यानी कि कावेरी पट्टिनम जो चोलाज का जो है पोर्ट था वो बहुत ज्यादा शक्तिशाली हुआ आपका। मदुरई, जिसको आजकल चेन्नई के नाम से जाना जाता है, द कैपिटल ऑफ पांड्याज, जो पांड्याज की आपकी कैपिटल थी। तो ये जो 2 शहर हैं ये बहुत ज्यादा आपके जो है पावरफुल हुए और बहुत ज्यादा फेमस हुए। द चीफ डिड नॉट कलेक्ट रेगुलर टैक्सेस। ये जो 3 जो हैं सदर्न जो रूलर्स थे, रूलिंग फैमिली थी, चेराज, चोलाज एंड पांड्याज, ये जो है रेगुलर टैक्सेस को कलेक्ट नहीं करते थे।
इंस्टेड, इसकी बजाय ये क्या करते थे, दे डिमांडेड एंड रिसीव्ड गिफ्ट फ्रॉम द पीपल, ये लोगों से जो है गिफ्ट को जो है डिमांड करते थे, यानी कि गिफ्ट लेते थे। दे ऑल्सो वेंट ऑन मिलिट्री एक्सपीडिशन, ये जो है मिलिट्री एक्सपीडिशन के लिए भी जाते थे, यानी कि अपनी सेना को लेकर जो है अपने जो नेबरिंग एरियाज है उनके ऊपर आक्रमण कर देते थे। एंड कलेक्टेड ट्रिब्यूट फ्रॉम नेबरिंग एरिया, और उनको जीतकर जो है वहां से जो है पैसा इकट्ठा करते थे, खजाना लूटते थे। दे केप्ट सम ऑफ द वेल्थ, उसमें से वो कुछ पैसा अपने पास रख लेते थे। एंड डिस्ट्रीब्यूटेड रेस्टेड, और बाकी का जो है दूसरों में बांट देते थे। अमंगस देयर सपोर्टर, जो उनके सपोर्टर होते थे, जो उनके सहायक होते थे। इंक्लूडिंग मेंबर ऑफ देयर फैमिली, उनमें जो है उनकी रॉयल फैमिली का मेंबर भी होता था। सोल्जर, सैनिक भी होते थे। एंड पोइट्स, और कवि भी होते थे। Many poets whose compositions are found in Sangam collections composed poems in praise of chiefs, who often rewarded them with precious stone, gold, horses, elephant, chariot and fine clothes. तो जैसा कि पोइट्स को भी जो है खजाना दिया जाता था, इसलिए संगम कलेक्शन में, संगम लिटरेचर में जो पोयम हमको मिली है, ज्यादातर वो पोयम जो है राजाओं की प्रशंसा में लिखी गई है, क्योंकि राजा उनको जो है पैसा देता था। प्रीसियस स्टोन, प्रीसियस स्टोन उनको दिए जाते थे। गोल्ड, सोना दिया जाता था। हॉर्सेस, घोड़े। एलिफेंट, हाथी। चैरियट, रथ। एंड फाइन क्लोथ, और अच्छे क्लोथ जो है उनको दिए जाते थे, इसलिए वो हमेशा जो है राजा की प्रशंसा में लिखते थे। अराउंड 200 ईयर्स लेटर, तकरीबन 200 साल बाद, ए डायनेस्टी नोन एज सातवाना, एक और पावरफुल डायनेस्टी आपकी जो है इमर्ज हुई, बिकेम पावरफुल, जो बहुत ज्यादा शक्तिशाली थी इन वेस्टर्न इंडिया, पश्चिमी भारत में, यानी कि जो वेस्टर्न जो हमारा एरिया था, वहां पे जो है आपकी जो है सातवाहन जो रूलर्स हैं वो बहुत ज्यादा आपके जो है पावरफुल हुए, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया भी था। The most important ruler of the सातवाहनास was गौतमीपुत्रा श्री सतकर्णी। इनमें से जो सबसे फेमस जो आपके राजा हुए हैं सातवाहन में, उनमें सबसे फेमस आपके रूलर थे, इंपॉर्टेंट रूलर थे गौतमीपुत्रा श्री सतकर्णी। We know about him from an inscription composed by his mother गौतमी बालाश्री। उनके बारे में हमको एक इंस्क्रिप्शन से पता लगता है जो उनकी माता गौतमी बालाश्री के द्वारा कंपोज किया गया था, लिखा गया था। सतकर्णी एंड अदर सातवाहन रूलर्स वर नोन एज लॉर्ड्स ऑफ दक्षिण पथा। जो सतकर्णी थे या सातवाहन जो रूलर्स थे, उनको जो है लॉर्ड्स ऑफ दक्षिण पथा, दक्षिण भारत का स्वामी कहा जाता था, या दक्षिण भारत का मालिक, दक्षिण पथ के मालिक जो है उनको कहा जाता था। लिटरली अगर शाब्दिक रूप से देखें, द रूट लीडिंग टू साउथ, दक्षिण में साउथ, पाथ मीन्स वे, रास्ता, यानी कि ऐसा रास्ता जो दक्षिण की ओर जाता है। तो जो रास्ते दक्षिण की ओर जाते थे, विच वॉज ऑल्सो यूज एज अ नेम फॉर द एंटायर सदर्न रीजन, या जिसको हम सारे सदर्न रीजन के लिए जो आपका यूज होता था दक्षिण पथा, उसके जो मालिक थे उन पे जो कंट्रोल था वो सातवाहन का था। जैसे मैंने प्रीवियस चैप्टर में आपको बताया था, उज्जैन एक स्थान है आपका एमपी में, जहां से जो तकरीबन सभी जो रास्ते हैं वो साउथ इंडिया की ओर जाते थे, इंपॉर्टेंट आपका सिटी था। तो ऐसे स्थानों पर जो है किसका राज्य था, सातवाहन रूलर का राज्य था, और इसीलिए उनको लॉर्ड्स ऑफ दक्षिण पथा के नाम से जाना जाता है। He sent his army to control the eastern, western and southern coast. सातवाहन ने जो है, जो गौतमी पुत्र श्री सतकर्णी थे, उसने अपनी आर्मी को जो है ईस्टर्न, वेस्टर्न और सदर्न कोस्टल एरिया में भेजा, ताकि जो है सभी जगह पर उनका कंट्रोल हो सके। After that, the new concept is the Silk Route. In this concept, as the name indicate, we are going to discuss the story of silk and the Silk Route. Silk is the highly valued fabric in most societies due to its rich, glossy colors and smooth texture. जो सिल्क होता है, रेशम जो होता है, एक बहुत कीमती जो है फैब्रिक होता है, जो हाई सोसाइटी में जो आपका जो है बहुत ज्यादा लोकप्रिय होता है। ड्यू टू इट्स रिच ग्लोसी कलर्स, क्योंकि इसके जो कलर होते हैं वो चमकीले होते हैं, एंड स्मूथ टेक्सचर जो है इसका होता है। मेकिंग सिल्क इज अ कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस। सिल्क को बनाना एक बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस होती है। रो सिल्क, जो कच्चा सिल्क होता है, कच्चा रेशम जो होता है,
हैज टू बी एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द ककून्स, वो ककून से निकाला जाता है, ऑफ सिल्क वॉर्म, जो सिल्क वॉर्म के द्वारा प्रोड्यूस किया जाता है। यहाँ पे जो एक पिक्चर आप देख रहे हैं, इस पिक्चर में भी आपने देखा होगा कि यहाँ पे एक सिल्क वॉर्म है। सिल्क वॉर्म जो है एक रॉ मटेरियल निकालता है, जो आगे आपको दिखाई दे रहा होगा, जिसको ककून के नाम से जाना जाता है। इस ककून को हम क्या करते हैं, स्पन इनटू थ्रेड, धागे में इसको स्पन करते हैं, एंड देन वूवन टू द क्लॉथ, और फिर इसके बाद इसका कपड़ा बुना जाता है। टेक्निक्स ऑफ मेकिंग सिल्क वर फर्स्ट इन्वेंटेड इन चाइना अराउंड 7000 ईयर एगो। तकरीबन आज से 7000 साल पहले सिल्क को बनाने की जो तकनीक थी वो चाइना में इन्वेंट की गई थी, चाइना ने बनाया था इसको। लेकिन चाइना ने जो है पूरे वर्ल्ड से इसको जो है सीक्रेट रखा, किसी को भी जो है इसको बनाने की विधि उन्होंने नहीं बताई। या आप ये कह सकते हैं कि सिल्क पे जो एकाधिकार था, उसकी बनाने की जो विधि थी वो केवल चाइना के पास थी, दूसरे देशों में इसका जो है कोई भी ज्ञान नहीं था, इसलिए उनका जो व्यापार है वो बहुत ज्यादा फैल गया था। While the method of making silk remained a closely guarded secret for thousands of years, तकरीबन हजारों साल तक जो है पूरी तरह से इसको बनाने की कला को, इसको बनाने की विधि को जो है पूरी तरह से आपका जो है डिस्क्लोज जो है रखा गया था। Some people from China who went to distant land on foot, कुछ व्यक्ति जो चाइना में जाते थे, या तो वो चाइना से जो है दूसरे देशों में जाते थे, या तो पैदल, हॉर्सबैक या घोड़ों पर चढ़कर, एंड ऑन कैमल या ऊंटों पे, कैरिड सिल्क विद देम, वो अपने साथ जो है सिल्क लेकर जाते थे। यहाँ पे आपको एक पिक्चर दिखाई दे रही होगी, यहाँ पे ये बेटा चाइना का रीजन आपका है। यहाँ से जो लोग हैं लैंड रूट के द्वारा या सी रूट के द्वारा जो है तकरीबन वेस्टर्न एशिया और आपका रोम तक भी जो है लोग जो है जाते थे, चाइना के लोग, और यहाँ तक उनका जो है व्यापार जो है वो फैला हुआ था। The paths they followed came to be known as Silk Route, जो रास्ता वो जो है फॉलो करते थे, यानी कि ये जो सारे रास्ते हैं जो आप देख रहे हैं, these are known as सिल्क रूट, यहाँ जहां से वो सिल्क लेकर जाते थे उनको सिल्क रूट का नाम दिया गया। Sometime Chinese ruler sent gift of silk to ruler in Iran and West Asia, and from there the knowledge of silk spread further west. कई बार चाइनीज जो रूलर थे वो ईरान और वेस्ट एशिया के जो शासक थे, जो रूलर थे, उनको जो है गिफ्ट के रूप में जो है सिल्क भेजते थे, और यहाँ से जो सिल्क का ज्ञान है वो वेस्ट में जो है यानी कि वेस्टर्न एशिया में जो है फैला था। अबाउट 2000 ईयर एगो, आज से तकरीबन 2000 साल पहले, वियरिंग सिल्क बिकेम द फैशन अमंगेस्ट रूलर्स एंड रिच पीपल इन रोम। रोम में जो है जो शासक थे वो जो है वहां पे, या अमीर आदमी जो थे, सिल्क को पहनना वहां पे एक फैशन बन गया था, यानी कि अमीर व्यक्ति या बड़े बड़े राजा जो हैं सिल्क को पहनते थे। द सिल्क वॉज वेरी एक्सपेंसिव, सिल्क जो था वो बहुत महंगा था, एज इट हैड टू बी ब्रोट ऑल दी वे फ्रॉम चाइना, क्योंकि ये केवल चाइना से ही लाया जाता था, केवल चाइना में ही ये प्रोड्यूस होता था। अलोंग डेंजरस रोड थ्रू माउंटेन एंड डेजर्ट, ये चाइना से जो है दूसरे देशों में लाया जाता था, कहाँ से, खतरनाक रास्तों से, पहाड़ों से, और जो आपके रेगिस्तान होते थे, डेजर्टिक एरिया था वहां से। पीपल लिविंग अलोंग द रूट, जो लोग इस रूट के सहारे रहते थे, इन रास्तों के सहारे रहते थे, ओपन डिमांडेड पेमेंट फॉर अलोइंग ट्रेडर्स टू पास थ्रू, वो जो है ट्रेडर से जो है पैसे मांगते थे और तब जो है उनको रास्ता पार करने दिया जाता था। सम किंग्स ट्राई टू कंट्रोल लार्ज पोर्शन ऑफ द रूट, कई जो राजा थे उन्होंने जो है इस सिल्क रूट के बहुत बड़े हिस्से पर जो है अपना अधिकार कर लिया था। दिस वॉज बिकॉज, उन्होंने ऐसा क्यों किया, दे कुड बेनिफिट फ्रॉम टैक्सेस, ट्रिब्यूट एंड गिफ्ट दैट वर ब्रोट बाय ट्रेडर ट्रेवलिंग अलोंग द रूट, क्योंकि जो इन रूट्स पे जो ट्रेडर चलते थे वो उन राजाओं को जो है टैक्स देते थे, ट्रिब्यूट देते थे, पैसा देते थे, एंड गिफ्ट, और उनके लिए जो है गिफ्ट लेकर वो आते थे, तो इसीलिए जो है राजाओं को इनसे फायदा हुआ। इन रिटर्न, और इसके बदले में, दे ओपन प्रोटेक्टेड द ट्रेडर, वो ट्रेडर को जो है प्रोटेक्शन देते थे,
हु पास थ्रू देयर किंगडम, जो उनके जो है राज्य से गुजरते थे, फ्रॉम अटैक बाय रोबर, कोई लुटेरा उनको लूट ना ले, इससे जो है उनकी प्रोटेक्शन जो है राजाओं के द्वारा की जाती थी। The best known of the ruler who controlled the Silk Route were the Kusans. I told you that Kusans were also the powerful ruler that emerged from the Mauryan Empire, and the best known Kusan's ruler was Kaniska. Kaniska was also known as the second Asoka because he was the ruler who spread the Buddhism in the world like Asoka. So सबसे ज्यादा जो सिल्क रूट पर कंट्रोल किया हुआ था, दैट वाज डन बाय द कुसान रूलर्स हु रूल्ड ओवर सेंट्रल एशिया, जो सेंट्रल एशिया पे जो है शासन करते थे, एंड नॉर्थ वेस्ट इंडिया, और नॉर्थ वेस्ट इंडिया में भी उनका राज्य था अराउंड 2000 ईयर एगो, आज से तकरीबन 2000 साल पहले। The two major centers of power of the Kusanas were पेशावर एंड मथुरा। जो कुसान्स के दो पावरफुल स्टेशन थे वो थे पेशावर, जो आपका पाकिस्तान में, और मथुरा जो आपका इंडिया में, नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया में आपका है। तक्सीला वॉज ऑल्सो इंक्लूड इन देयर किंगडम, और तक्सीला भी जो है उनके किंगडम का एक हिस्सा था जो आजकल पाकिस्तान में है। ड्यूरिंग देयर रूल, जब वो शासन करते थे, ए ब्रांच ऑफ सिल्क रूट एक्सटेंडेड फ्रॉम सेंट्रल एशिया, तो सेंट्रल एशिया से जो है आपका सिल्क रूट जो है वो विकसित किया गया, उसको बढ़ाया गया डाउन टू द सी पोर्ट, यानी कि जो सेंट्रल एशिया था उसके बाद उन्होंने सी के द्वारा जो है यानी कि समुद्र तक जो है उसको बढ़ाया, एक्सटेंड किया एट द माउथ ऑफ रिवर इंडस, यानी कि ये इंडस रिवर जो है, यानी कि ये सेंट्रल एशिया है, यहाँ से होता हुआ ये यहाँ तक का जो रास्ता है वो उनके द्वारा जो है बढ़ाया गया। फ्रॉम वेयर, यहाँ से क्या किया जाता था, सिल्क वो शिप वेस्ट वार्ड्स टू द रोमन एम्पायर, यहाँ से जो सिल्क है वो रोम में जो है आपका भेजा जाता था समुद्री रास्तों से। The Kusans were amongst the earlier rulers of the subcontinent to issue gold coin. कुसान जो हैं ऐसे पहले शासक हुए हैं इंडियन सब कॉन्टिनेंट में जिन्होंने गोल्ड कॉइन को जो है प्रचलित कराया, गोल्ड कॉइन को इशू किया था। दीज वर यूज बाय ट्रेडर अलोंग द सिल्क रूट, और जो सिल्क रूट पे जो ट्रेडर काम करते थे उनके द्वारा गोल्ड कॉइन जो है वो यूज किए जाते थे। कनिष्का, द मोस्ट फेमस कुसान रूलर, सबसे फेमस जो कुसान रूलर हुए हैं वो आपके जो है कनिष्का हैं, हु रूल्ड अराउंड 1900 ईयर एगो, जिन्होंने तकरीबन जो है 1900 ईयर एगो पहले जो है शासन किया। ऑर्गेनाइज ए बुद्धिस्ट काउंसिल, उन्होंने एक बुद्धिस्ट काउंसिल को बनाया, वेयर स्कॉलर्स मेट एंड डिस्कस इंपॉर्टेंट मैटर, जहाँ पे विद्वान लोग जो हैं इकट्ठे बैठते थे और इंपॉर्टेंट मैटर जो होते थे, इंपॉर्टेंट जो इश्यूज होते थे उनको डिस्कस किया करते थे। यानी कि कनिष्का वाज नोन एज द सेकंड अशोका हु स्प्रेड द बुद्धिज्म इन द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। अशव घोषा ए पोइट, वहां पे एक फेमस पोइट हुए अशव घोषा, हु कंपोज ए बायोग्राफी ऑफ द बुद्धा, जिन्होंने बुद्धा की जीवनी लिखी, बुद्धा की बायोग्राफी लिखी, बुद्ध चरिता, और उस बायोग्राफी का नाम, उस पुस्तक का नाम बुद्ध चरिता है। लिव्ड इन हिज कोर्ट, वो जो है कनिष्का के कोर्ट में, कनिष्का के राज्य में रहते थे। अशव घोषा एंड अदर बुद्धिस्ट स्कॉलर्स नाउ बिगेन राइटिंग इन संस्कृत। अशव घोषा और दूसरे जो बुद्धिस्ट स्कॉलर्स थे, जैसा कि वो पहले प्राकृत भाषा में लिखते थे, अब उन्होंने जो है संस्कृत भाषा में लिखना शुरू कर दिया था। ए न्यू फॉर्म ऑफ बुद्धिज्म नोन एज महायाना बुद्धिज्म डेवलप इन दिस पीरियड, इस पीरियड में जो है बुद्धिज्म का एक नया रूप विकसित किया गया जिसको महायाना बुद्धिज्म के नाम से जाना जाता है। डेवलप इन दिस पीरियड, वो जो है कुसान्स के टाइम में जो है अप्रोक्सीमेटली आज से 1900 ईयर एगो पहले जो है वो आपका विकसित हुआ। महायाना बुद्धिज्म हैड टू डिस्टिंक्ट फीचर, महायान जो बुद्धिज्म था उसकी दो विशेषताएं थी। द फर्स्ट चेंज, जो पहला चेंज महायाना ने किया, दैट द स्टैचूज ऑफ बुद्धा वर मेड इंस्टेड ऑफ द अर्लियर वे ऑफ शोइंग द बुद्धाज प्रेजेंस यूजिंग सर्टेन साइन एंड स्कल्पचर। जो पहला चेंज आया वो क्या किया गया, बुद्धा के स्टैचू जो है वो बनाने शुरू किए गए। इससे पहले क्या होता था, बुद्धा की प्रेजेंस को जो शो करते थे उनको साइंस और स्कल्पचर के द्वारा दिखाया जाता था। जैसे कि आज इस पिक्चर में आप देख रहे हैं, बुद्धा को एक ट्री के नीचे दिखाया गया है जहाँ पे वो लोगों को ज्ञान दे रहे हैं या उनको एनलाइटमेंट प्राप्त हो रहा है।
तो ये तो आपकी पुरानी थेरवाडू बुद्धिज्म था, यानी कि पुरानी परंपरा थी, ऐसे बुद्ध को दिखाया जाने लगा था। लेकिन अब जो है उनके स्टैचू बनाए जाने लगे। फॉर इंस्टेंस, जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर इन्होंने बताया, अर्लियर हिज अटेनमेंट ऑफ एनलाइटमेंट, जैसे उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई, वो शोन बाय स्कल्पचर, उनको मूर्तियों के द्वारा दिखाया गया, ऑफ द पीपल ट्री, पीपल ट्री के नीचे, यानी कि पीपल ट्री के साथ में जो है बुद्धा को दिखाया जाता है हमेशा। वो पुरानी परंपरा थी। अब क्या किया जाने लगा, नव स्टैचूज ऑफ बुद्धा वर मेड, अब बुद्धा के स्टैचू जो हैं बनाए जाते थे। मैनी ऑफ दीज वर मेड इन मथुरा, इनमें से ज्यादातर जो है मथुरा में बनाए जाते थे। वाइल अदर्स वर मेड इन तकसीला, जबकि दूसरे जो है तकसीला, जो पाकिस्तान में आजकल है, वहां पे आपके बनाए जाते थे। तो पहला चेंज जो महायाना बुद्धिज्म में किया गया कि बुद्धा के जो है स्टैचू जो है वो बनाए जाने लगे। सेकंड चेंज और दूसरा जो परिवर्तन आया वो जब बिलीफ इन बोधिसत्वा, बोधिसत्व में के विश्वास में जो है चेंज आया। बोधिसत्वाज, ये बोधिसत्वाज कौन होते थे, हु गॉट दी एनलाइटमेंट, जिनको ज्ञान की प्राप्ति हो जाती थी बुद्ध की तरह, उनको बोधिसत्वाज के नाम से जाना जाता है। सो बोधिसत्वाज वर सपोज टू बी पर्सन, बोधिसत्वाज वो व्यक्ति हो सकते थे हु हैड अटेन एनलाइटमेंट, जिनने ज्ञान प्राप्त कर लिया। वंस दे हैड अटेन एनलाइटमेंट, पहले अगर वो ज्ञान को प्राप्त कर लेते थे, दे कुड लिव इन कंप्लीट आइसोलेशन, वो इस संसार से बिल्कुल अलग हो जाते थे, एकांत में रहते थे, आइसोलेशन में रहते थे। एंड मेडिटेट इन पीस, और जो है शांति वाले माहौल में, काम एनवायरमेंट में जो है मेडिटेशन किया करते थे। हाउएवर इन द पीरियड ऑफ महायाना बुद्धिज्म, जबकि महायाना बुद्धिज्म में क्या हुआ, इंस्टेड ऑफ आइसोलेटिंग, वो जो है समाज से अलग नहीं हुए, उनको ज्ञान तो प्राप्त हो गया, लेकिन वो इस समाज से अलग नहीं हुए, आइसोलेट नहीं हुए। बोधिसत्वा रिमेन इन दी वर्ल्ड, वो इस संसार में ही रहने लगे, यानी कि आम लोगों के साथ वो रहने लगे। टू टीच एंड हेल्प अदर पीपल, वो जो है उनको शिक्षा देते थे, दूसरे लोगों को शिक्षा देने का काम करने लगे, और उनको जो है उनकी हेल्प करने लगे थे। दी वर्शिप ऑफ बोधिसत्वाज बिकेम वेरी पॉपुलर, जो बोधिसत्वाज की जो पूजा करना जो है वो भी जो है इस समय में बहुत ज्यादा फेमस हो गया था, पॉपुलर हो गया था। एंड स्प्रेड थ्रू आउट सेंट्रल एशिया, चाइना एंड लेटर टू कोरिया एंड जापान, और बोधिसत्वा की जो पूजा है वो आपकी सेंट्रल एशिया, चाइना, कोरिया और जापान तक भी जो है फैल गई थी। तो ये दो चेंज आए। पहला चेंज क्या आया महायाना बुद्धिज्म में, बुद्ध के जो है स्टैचू बनाने शुरू किए गए, और दूसरा जिन लोगों को ज्ञान की प्राप्ति हो जाती थी वो इस संसार में रहकर जो है यहाँ के लोगों को जो है शिक्षा देने का काम करने लगे। नाउ नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इज दी स्प्रेड ऑफ बुद्धिज्म, जो आपका बुद्धिज्म है वो कैसे आपका जो है स्प्रेड हुआ। Buddhism also spread to the western and southern India, where dozens of caves were hollowed out of hills for monks to live in. बुद्धिज्म जो है आपका वेस्टर्न और सदर्न इंडिया, पश्चिमी और दक्षिणी भारत में जो है वो जो है फैला। वेयर डजन ऑफ केव, जहां पे दर्जनों जो केव्स हैं, डजन क्या होता है, 12 वस्तुएं जो हैं डजन में आपकी होती हैं, बहुत सी दर्जनों जो केव जो है वो बनाई गई, पत्थरों को काटकर, पहाड़ियों को काटकर। होलोड, होलोड क्या होता है, यानी कि जब आपका एक हार्ड सब्सटेंस होती है और उसके बीच में आपका जो है खाली जगह होती है, तो उसको हम जो है होलो का नाम देते हैं। जैसे बैम्बू का आपने देखा होगा, चारों तरफ से आपका सॉलिड होता है, बीच में से खोखला होता है, तो उसको हम होलोड कहते हैं। तो पहाड़ों को काटकर जो है होलो किया गया, उससे इस प्रकार से आपकी जो है केव्स बनाई गई, जहां पे जो है बौद्ध भिक्षु जो है रह सके। Some of these caves were made on the order of kings and queens, other were merchant and farmer. ये जो caves बनाई गई ये राजा और रानियों के आदेशों से बनाई गई, जबकि कुछ caves जो हैं आपकी व्यापारियों और किसानों के आदेशों से बनाई गई। These were often located near passes through the western घाट, जैसा कि बुद्धिज्म आपका साउथ इंडिया में भी फैला, तो वेस्टर्न घाट पे जहां पासिस होते थे, जहां पे रास्ते होते थे, वहां पे ये आपकी जो है बनाई गई। रोड्स कनेक्टेड प्रोस्पेरस पोर्ट्स ऑन द कोस्ट, जो आपके पोर्ट्स होते थे जहां पे दूसरे देशों से लोग आते थे, उनको जो है रोड के द्वारा कनेक्ट किया गया। विद सिटीज इन दी दक्कन, दक्कन में जो दक्कन प्लेटू का जो रीजन है वो उनको जो है शहरों से भी जोड़ा गया। रन थ्रू दीज पासिस, और ये जो है सारे जो है इन पासिस से होकर गुजरते थे। ट्रेडर्स
probably halted in this cave monastery during their travel. जो ट्रेडर्स होते थे आमतौर पर होल्टेड का मतलब होता है जब आप एक यात्रा पर जाते हैं और कहीं बीच में विश्राम करते हैं, रुक जाते हैं, ठहराव जिसको आप कहते हैं। तो इन मोनेस्ट्री में, इन केव्स में जो है वो आराम के लिए जो है रुकते थे, अपनी यात्राओं के दौरान जो है होल्ड करते थे, यहाँ पे रुकते थे। बुद्धिज्म ऑल्सो स्प्रेड साउथ ईस्टवर्ड टू श्रीलंका, म्यांमार, थाईलैंड एंड अदर पार्ट ऑफ साउथ ईस्ट एशिया इंक्लूडिंग इंडोनेशिया। जो आपका बुद्धिज्म था, इसके अतिरिक्त आपका ईस्टवर्ड डायरेक्शन में भी आपका फैला, जैसे कि आपका जो है म्यांमार और थाईलैंड, और इसके अतिरिक्त साउथ में आपका श्रीलंका और आपका इंडोनेशिया वगैरह, साउथ ईस्ट में आपका इंडोनेशिया, यहाँ पे भी आपका जो है बुद्धिज्म जो है आपका फैला। द ओल्डर फॉर्म ऑफ बुद्धिज्म नोन एज थेरवाडा बुद्धिज्म, जो ओल्डर फॉर्म थी वो आपकी थेरवाडा बुद्धिज्म थी, वो मोर पॉपुलर इन दीज एरिया, जो ये श्रीलंका, म्यांमार, थाईलैंड और इंडोनेशिया में ज्यादा पॉपुलर थी आपकी, यानी कि पुरानी फॉर्म, जैसे कि बुद्ध को स्कल्पचर के द्वारा जो है दिखाया जाता था, ना कि स्टैचूज के द्वारा। नाउ द क्वेस्ट ऑफ द पिलग्रिम। अब जब बुद्ध धर्म जो है संसार के अलग अलग कॉर्नर्स में फैला, तो वहां से बहुत से पिलग्रिम कौन होते हैं? ऐसे पुरुष या स्त्री जो पूजा के लिए जो है धार्मिक स्थानों की यात्रा करते हैं, उनको पिलग्रिम, तीर्थयात्री का नाम दिया जाता है। तो पिलग्रिम जो है, क्वेस्ट का मतलब होता है जब आप किसी चीज की खोज करते हैं, कोई स्पिरिचुअल मैटर होता है, आप उसका जो है पता लगाते हैं, तो उसको क्वेस्ट बोला जाता है। तो पिलग्रिम ने क्या खोज की? पिलग्रिम्स आर men and women who undertake journeys to holy places in order to offer worship। यानी कि जो पिलग्रिम्स होते थे, जो पुरुष स्त्रियां पिलग्रिम होती थी, वो जो है धार्मिक स्थानों की यात्राओं पर जाती थी वर्शिप, पूजा करने के लिए। As traders journeyed to distant land in caravans and ships, pilgrim often traveled with them। जैसा कि आपको ज्ञात है, जो ट्रेडर्स थे वो जो है समुद्री जहाजों के द्वारा कारवेंस ग्रुप में जो है दूर दूर के देशों में जाते थे, तो पिलग्रिम भी जो है तकरीबन उन्हीं के साथ जो है यात्राएं करते थे। दे केम टू विजिट प्लेसेस एसोसिएटेड विद द लाइफ ऑफ द बुद्धा। उस समय जो ज्यादातर पिलग्रिम्स होते थे वो जो है जहाँ पे बुद्धा के जीवन से संबंधित बातें पाई जाती थी, उन स्थानों की जो है, उन स्थानों की यात्राएं जो है, उन स्थानों की विजिट करते थे, एज वेल एज फेमस मोनेस्ट्री, या अगर कोई फेमस मोनेस्ट्री होती थी उनकी भी यात्राएं जो है वो करते थे। द बेस्ट नोन ऑफ दीज आर चाइनीज बुद्धिस्ट पिलग्रिम। जो इन पिलग्रिम में सबसे फेमस जो आपके पिलग्रिम्स हुए वो चाइनीज बुद्धिस्ट पिलग्रिम्स हुए। नेम आर फाजियान, who came to the subcontinent about 1600 years ago, Yuanzhang, who came around 1400 years ago, and Itzing, who came about 15 years after Yuanzhang। तो तीन चाइनीज रूलर आप, तीन चाइनीज पिलग्रिम्स आपके जो है इंडियन सब कॉन्टिनेंट में आए, फाजियान, युआनजैंग एंड द इत्सिंग, और तीनों का एक ही उद्देश्य था, टू नो मोर एंड मोर थिंग अबाउट द बुद्धा। Yuanzhang and other pilgrims spent time study in Nalanda in Bihar। नालंदा यूनिवर्सिटी में जो युआनजैंग है और अदर पिलग्रिम्स हैं वो स्टडी करने के लिए आए, पढ़ने के लिए आए। द मोस्ट फेमस बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री ऑफ दिस पीरियड, जो इस पीरियड की बहुत फेमस जो है मोनेस्ट्री आपकी हुई। ईच ऑफ दीज पिलग्रिम, इन तीनों पिलग्रिम्स ने लेफ्ट एन अकाउंट ऑफ हिज जर्नी, अपनी यात्राओं के बारे में लिखा। दे रोट ऑफ द डेंजर्स दे एनकाउंटर ऑन देयर ट्रेवलर, उनको अपनी यात्राओं के दौरान किन किन खतरों का सामना करना पड़ा उन सब के बारे में उन्होंने लिखा। विच ऑफन टुक ईयर, जिनको तकरीबन जो है कई साल लग जाते थे। ऑल्सो द कंट्रीज एंड द मोनेस्ट्री दैट दे विजिट, उन्होंने हमारे अलग अलग देशों के बारे में, हम भारत देश के बारे में और भारत में जो मोनेस्ट्री थी उनके बारे में भी लिखा जिनकी उन्होंने यात्राएं की। एंड द बुक्स दे कैरीड बैक विद देम, और इसके बाद जो है यहाँ से वो जो है बुद्ध के बारे में जो बुक्स लिखी गई थी उनको भी जो है अपने साथ जो है चाइना में वापस लेकर गए, और वहां पे उनकी जो ट्रांसलेशन है उन्होंने चाइनीज लैंग्वेज में की। लास्ट कॉन्सेप्ट हमारा है बेटा द बिगिनिंग ऑफ भक्ति। इसी टाइम जो है आपका जो है भक्ति भी जो है वो भी आपकी स्टार्ट हुई।
The idea of bhakti became very popular and its form of worship gradually spread to different parts of the country. इस समय जो है भक्ति का विचार भी जो है बहुत ज्यादा प्रसिद्ध हुआ और इसमें जो है इट्स फॉर्म ऑफ वर्शिप ग्रेजुअली स्प्रेड, यानी कि भक्ति में जो है पूजा जो की जाती है, ये जो आइडिया है ये हमारे देश के अलग अलग हिस्सों में जो है धीरे धीरे जो है फैलने लगा। सर्टेन डिटीज जो भक्ति है ज्यादातर हिंदू धर्म में फैली। सर्टेन डिटीज, डिटीज मीन गॉड एंड गॉडेसेस, कुछ आपके जो है फिक्स, सर्टेन निश्चित, कुछ निश्चित आपके जो है देवी देवता थे जिनकी पूजा की जाती थी। दे इंक्लूड शिवा, विष्णु एंड गोडेस सच एज दुर्गा। तीन फेमस हैं आपके, भगवान शिव, भगवान विष्णु और देवी दुर्गा। वर वर्शिप थ्रू भक्ति, भक्ति के द्वारा जो है इनकी पूजा की जाती थी। एंड बिकेम ए सेंट्रल फीचर ऑफ लेटर हिंदुइज्म, और हिंदू धर्म में जो है इनकी जो है आमतौर पर पूजा की जाती थी, ये बहुत ज्यादा फेमस हो गए थे। भक्ति इज जनरली अंडरस्टूड एज अ पर्सन डिवोशन टू हिज और हर चूजन डीटी। भक्ति को अगर हम आम भाषा में बात करें तो जनरली आप इसको ऐसे समझ सकते हैं कि जब एक व्यक्ति का बहुत ज्यादा प्रेम, बहुत ज्यादा डिवोशन जो है, लगाव जो है अपने चुने हुए भगवान में हो जाता है, यानी कि कोई आपको नहीं कहता कि इस भगवान की पूजा करो या इसमें ध्यान लगाओ, आपका ऑटोमेटिकली हो जाता है। वो कोई भी भगवान हो सकता है, वो भगवान शिव भी हो सकते हैं, भगवान विष्णु भी हो सकते हैं, भगवान राम भी हो सकते हैं, भगवान श्री कृष्ण भी हो सकते हैं, देवी दुर्गा भी हो सकती है, देवी सरस्वती भी हो सकती है, कोई भी देवी, कोई भी भगवान का रूप आप जो है उसके प्रति आपका प्रेम हो सकता है। Anybody, whether rich or poor, belonging to the so-called high or low caste, man or woman, could follow the path of bhakti. कोई भी व्यक्ति, चाहे वो अमीर हो या गरीब हो, चाहे वो ऊंची जाति का हो, चाहे वो नीची जाति का हो, चाहे वो पुरुष हो या वो स्त्री हो, कोई भी जो है भक्ति के रास्ते को चुन सकता था। दी वर्ड भक्ति कम्स फ्रॉम द संस्कृत टर्म भज। भक्ति जो है संस्कृत भाषा के शब्द भज से लिया गया है। भज का मतलब होता है मेडिटेट, जब आप एक नाम को बार बार पढ़ते हैं, स्मरण करते हैं, मेडिटेट करते हैं, एक नाम को बार बार जपते हैं, तो उसको भजन कहते हैं। मीनिंग टू डिवाइड और शेयर, यानी कि जिसका मतलब होता है टू डिवाइड एंड शेयर, कि आप जो है आपने डिवाइड किया और आप उसके बाद आप उस चीज को जो है शेयर कर रहे हैं। व्हाट डू यू मीन बाय डिवाइड एंड शेयर? हैव ए लुक हियर। दिस सजेस्ट एन इंटीमेट टू-वे रिलेशनशिप बिटवीन द डीटी एंड द डिवोटी। इसका मतलब ये होता है कि जब आप इंटीमेट हो जाते हैं, एक दूसरे में आपका अगाध प्रेम हो जाता है, ये दो तरीके का रिलेशनशिप होता है बिटवीन द डीटी, भगवान के बीच में, एंड डिवोटी और भगत के बीच में। जब भगत और भगवान इंटीमेट हो जाते हैं, एक हो जाते हैं, और यानी कि जब भगत जो है भगवान को याद करता है तो ऐसा माना जाता है कि भगवान उसकी सहायता करते हैं, तो उसको हम टू वे रिलेशनशिप के नाम से जानते हैं। द आइडिया ऑफ भक्ति is present in the Bhagavad Gita, a sacred book of the Hindus, which is included in the Mahabharata. भक्ति का जो विचार है ऐसा माना जाता है कि भगवत गीता से लिया गया है, जो हिंदुओं की सैक्रिड एक होली बुक है, पवित्र बुक है। यानी कि हमारे दो एपिक हैं बेटा, रामायण एंड महाभारत। रामायण एंड महाभारत जैसे हैं, तो महाभारत का जो एक वॉर हुआ था बेटा 18 डेज के लिए, ये आपका जो है कजन्स के बीच में हुआ था, एक तरफ कौरव और दूसरी तरफ पांडव थे, ये दोनों कजन ब्रदर्स थे आपके। ऐसा माना जाता है कि जो कौरव थे वो संख्या में 100 थे और पांडव जो थे वो संख्या में 5 थे। तो जब कौरवों ने जो है छल कर लिया था पांडवों के साथ, वो उनको जो है उनके राज्य का आधा हिस्सा नहीं दे रहे थे, तो जब उन्होंने अपने राज्य का आधा हिस्सा मांगा, उन्होंने नहीं दिया, तो उसके बाद जो है एक लड़ाई लड़ी गई थी जिसको कुरुक्षेत्र बैटल के नाम से जाना जाता है, जो हरियाणा में आपका एक स्थान है। कुरुक्षेत्र में जो लड़ाई हुई उसको महाभारत बैटल के नाम से जाना जाता है। तो जब श्री कृष्ण जो थे पांडवों की तरफ थे, तो श्री कृष्ण जो पांडवों की तरफ थे, तो पांडवों में एक पांडव थे अर्जुन। अर्जुन ने जब सामने देखा तो उन्होंने देखा कि उनके कजन ब्रदर है, उन्हीं के भाई हैं आगे, उन्हीं के जो हैं दादा हैं, ग्रैंडफादर हैं, पितामह हैं वहां पे हैं, उन्हीं के गुरु थे, उन्हीं के शिक्षक थे। तो उनको विरक्ति आ गई थी कि वो जो है इनके साथ लड़ाई नहीं करेंगे। अगर वो जमीन के लिए अपनों का ही वध करेंगे तो वो जमीन उसके किस काम की।
तो श्री कृष्ण जी ने जो है उस समय जो है उनको जो है ज्ञान दिया था, उस ज्ञान को भगवत गीता का उपदेश के नाम से जाना जाता है। और भगवत गीता जो है हिंदुओं की एक श्रेष्ठ जो है पवित्र जो है बुक है, जिसका एक श्लोक बहुत ज्यादा फेमस है, कर्मण्ये वाधिकारास्ते मा फलेषु कदाचन, कि मनुष्य का जो अधिकार है वो कर्म करने में है, ना कि फल की चिंता करने में। माँ कर्म फल हेतु भूर्मो माँ संगो अस्ति कर्मणि, यानी कि मनुष्य को कभी भी ये सोच के फल को सोचकर जो है कर्म नहीं करना चाहिए, और कर्म के फल में भी जो है उसकी जो है श्रद्धा जो है वो नहीं होनी चाहिए, उसका लालच भी उसको नहीं होना चाहिए। यानी कि मनुष्य को जो है हमेशा अपना कर्म करना चाहिए। जिस प्रकार का आप कर्म करेंगे, जैसे कार्य आप करेंगे, वैसा ही रिजल्ट जो है, वैसा ही परिणाम आपको मिलता है। यानी कि अगर आप अच्छे कर्म करते हैं तो आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा, अगर आप बुरे कर्म करते हैं तो आपको बुरा परिणाम मिलता है। यानी कि जो बच्चे इस समय पढ़ाई करते हैं बचपन में, तो उनका आगे का भविष्य जो है बड़ा सुखमय होता है। लेकिन जो इस चीज को जो है सुखों में गुजार देते हैं, उनका आगे का जीवन जो है बहुत कठोर हो जाता है। यानी कि जैसा आप कर्म करते हैं वैसा ही आपको फल मिलता है। और विद्यार्थी के बारे में संस्कृत में कहा भी गया है कि विद्यार्थी सुखार्थी व त्यजेत विद्या, विद्यार्थी व त्यजेत सुखम, सुखार्थीन कुतो विद्या, विद्यार्थीन कुतो सुखम। जिसका अगर हम हिंदी में अनुवाद करें तो ये अनुवाद होगा कि सुख चाहने वाले को विद्या छोड़ देनी चाहिए, और विद्या चाहने वाले को सुख छोड़ देना चाहिए। यानी कि पढ़ाई करने वाले को जो है सुखों का त्याग कर देना चाहिए। उसको ये नहीं देखना है कि घर में क्या क्या सुख सुविधाएं हैं, नहीं, उसको जो है सुखों का त्याग कर देना चाहिए। और सुख चाहने वाले को जो है पढ़ाई का त्याग, विद्या का त्याग कर देना चाहिए। सुखार्थीन कुतो विद्या, सुख चाहने वाले को विद्या कहा, एंड विद्यार्थीन कुतो सुखम, और विद्या चाहने वाले को सुख कहा। यानी कि श्रेष्ठ कर्म हमको जो है करना चाहिए। तो भगवत गीता में जो है भक्ति का रास्ता बताया गया है। दोज हु फॉलोड द सिस्टम ऑफ भक्ति, जो भक्ति का अनुसरण करते हैं, एम्फेसाइज डिवोशन एंड इंडिविजुअल वर्शिप ऑफ ए गॉड और गोडेस रेदर देन द परफॉर्मेंस ऑफ इलेबरेट सेक्रीफाइस, वो जो है भगवान के प्रति अपनी आस्था रखते हैं भगवान के प्रति अपनी आस्था रखते हैं और भगवान की पूजा करते हैं, उनको मन में हमेशा ध्यान रखते हैं। कोई भी काम करते हैं तो भगवान का पहले नाम लेते हैं, यानी कि अपने समस्त कार्य जो है वो भगवान के साथ करते हैं। भगवत गीता में ये नहीं कहा गया कि आप इलेबरेट सेक्रीफाइस करें, आप आडंबर करें। यानी कि भगवत गीता में ये नहीं कहा गया है कि आप पूजा पाठ करें, आप व्रत रखें, आप नंगे पैर मंदिर जाएं, आप जो है 1 महीने तक भूखे रहें, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं कहा गया है। आप केवल जो है अच्छे कर्म करें, भगवान का ध्यान करें, वही जो है आपकी भक्ति होगी, और वही जो है भगवान को प्राप्त करने का एक साधन होगा। अकॉर्डिंग टू बिलीफ ऑफ भक्ति, अगर हम भक्ति के विचार को देखें, इफ अ डिवोटी, यानी कि कोई भी भगत जो है, एक डिवोटी जो है, वर्शिप द चूजन डीटी विद अ प्योर हार्ट, एक डिवोटी को जो है, एक भगत को जो है अपने भगवान की पूजा जो है प्योर हार्ट, सच्चे हृदय से करनी चाहिए। द डीटी विल अपीयर इन द फॉर्म इन विच ही और सी में डिजायर, अगर वो सच्चे दिल से भगवान की पूजा करता है तो भगवान उसको उसी रूप में दर्शन देते हैं जिस रूप में उसकी इच्छा होती है। सो दी डीटी कुड बी थॉट ऑफ, इसलिए आप भगवान को किसी भी रूप में सोच सकते हैं, जैसे कि ह्यूमन बीइंग, एक मानव के रूप में भी आप भगवान को देख सकते हैं, लोयन, ट्री और एनी अदर फॉर्म, किसी भी रूप में आप भगवान को देख सकते हैं। जिस रूप में आपने भगवान को मानना शुरू कर दिया है उसी रूप में भगवान आपको दर्शन देते हैं। ऐसा जो है भक्ति के अनुसार जो है माना जाता है। द डिवोटी इज नोन एज भक्ता, डिवोटी जो होता है उसको भगत के नाम से जाना जाता है, और दी भगवता, या उसको भगवता भी कहा जाता है, यानी कि जो भगवान का उपासक है, जो भगवान की पूजा करता है, या जो भगवान का एक अंश है। भगवता इज ऑफन ट्रांसलेटेड एज गॉड, कई बार भगवता को जो है भगवान के रूप में भी हम जो है ट्रांसलेट करते हैं, बट ऑल्सो मीन्स वन हु पोजेसेस एंड शेयर गुड फॉर्चून और ब्लिस, लेकिन इसका एक मतलब ये होता है
कि जिसको जो है भगवान का आशीर्वाद मिल गया है, जिसकी किस्मत अच्छी है। भागा यानी कि जिसको भगवान का अंश जिसमें है, जिसको भगवान का आशीर्वाद मिला है, उसको भगवता के नाम से जाना जाता है। 10 भक्ता शेयर द ब्लीस ऑफ हिज डिटी, तो इसलिए भक्ता जो है उसके ऊपर जो है भगवान का आशीर्वाद होता है, भगवान का ब्लीस होता है। वंस दिस आइडिया गेन एक्सेप्टेंस, जब इस आइडिया को आपका जो है समर्थन मिला, एक्सेप्ट हुआ ये, आर्टिस्ट मेड ब्यूटीफुल इमेजेस ऑफ दीज डिटी, जो आर्टिस्ट थे उन्होंने इन भगवानों की जो है मूर्तियां बनानी शुरू कर दी, इमेजेस बनानी शुरू की। सिंस द डिटीज वर स्पेशल, क्योंकि डिटीज जो है विशेष होते हैं। दीज इमेजेस ऑफ द डिटी वर ऑफन प्लेस्ड विद इन स्पेशल होम, इनकी जो मूर्तियां थी वो स्पेशल जो होम्स बनाकर जो है वहां पे रखी जाती थी। प्लेसेस दैट वर डिस्क्राइब एज टेम्पल्स, और इन प्लेसेस को, इन स्पेशल होम को जो है मंदिर के नाम से जाना जाता है। यानी कि मंदिरों में जो है भगवान की पूजा की जाती है और मंदिरों में ही जो है भगवान की मूर्ति रखी जाती है। भक्ति इंस्पायर्ड सम ऑफ द बेस्ट एक्सप्रेशन इन आर्ट, स्कल्पचर, पोइट्री एंड आर्किटेक्चर। जो भक्ति है, भक्ति जैसा कि भगवान के प्रति विश्वास है, तो कई बार भक्ति का अच्छा रूप जो है अलग अलग फॉर्म में हमको मिलता है। यानी कि कोई इसको जो अपनी आर्ट के द्वारा एक्सप्रेस करता है, कोई पत्थर से मूर्तियां बनाकर स्कल्पचर के द्वारा करता है, कोई भगवान के ऊपर पोयम लिख के करता है, और कोई जो है आर्किटेक्चर, भगवान के लिए जो है बड़े बड़े भवन बनाकर, बड़े बड़े मंदिर बनाकर जो है भगवान के प्रति अपनी आस्था को शेयर करता है। सो डियर स्टूडेंट, दिस इज अवर चैप्टर। आई होप you understood the chapter. Thank you. Have a nice day. God bless you all.